हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3, लेयर्स इन फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप सीसी इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फॉर इमेज एडिटिंग. It is both powerful and complex. As we learn to master its complexity, we will discover that Photoshop is a magical program. तो बच्चों, एडोब फोटोशॉप क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये पावरफुल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। एडोब फोटोशॉप सीसी इज यूज्ड टू adjust, scan, or digital camera images for better screen display or printing. It also allows us to change the file format of graphical images to use as email attachments on web pages or in printed documents such as brochures and newsletters. Edit photographs, especially those taken with a digital camera or digitized with a scanner. Photoshop become एन इलेक्ट्रॉनिक डार्क रूम. तो बच्चों, जो हमारा फोटोशॉप है वो बेसिकली हमें इमेज एडिटिंग के लिए काम आता है, जो कि डिजिटल कैमरास और स्कैनर से डिजिटाइज्ड हुई भी होती हैं. फोटोशॉप सीसी रिस्टोर्स ओल्ड और डैमेज्ड फोटोग्राफ्स. तो जो फोटोशॉप सीसी है वो जो पुरानी और डैमेज इमेजेस हैं, जो फोटोग्राफ्स होती हैं, उसको रिस्टोर भी करता है. मॉडिफाई इमेजेस और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू क्रिएट ओरिजिनल आर्टवर्क. Photoshop becomes an electronic playroom both for painting with pixels as well as working with scalable objects like lines, shapes and text. तो बच्चों, जो फोटोशॉप है वो पिक्सेल्स के साथ जो हमारी इमेज बनी होती है वो पिक्सल से बनी होती है. तो बच्चों, जो फोटोशॉप होता है वो हमारी इमेज जो कि हम पिक्सल से बनी होती है उसको एडिट करने के काम आता है, और जो लाइंस, शेप्स और टेक्स्ट होती है उसके थ्रू भी हमें काफी कुछ क्रिएट करने के लिए यूज होता है. वर्किंग विद पैनल्स. Panels helps to monitor and modify the work. Panels can be grouped, stacked, or docked. Panels are displayed in columns in the panel area along the right of the interface. In Photoshop CC, there are 3 panel columns by default. तो Photoshop में 3 panel columns होते हैं. The new libraries panel own column on the far right. The main panel column where we find panel we use the most is in the middle, and on the left is a narrow secondary column of panels. तो जो लाइब्रेरी का पैनल होता है वो हमें फोटोशॉप में राइट साइड देखने को मिलता है. जो मेन पैनल होता है वो हमें मिडल में देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड में एक नैरो और सेकेंडरी कॉलम होता है पैनल. द मेन पैनल कॉलम. अब हम पढ़ेंगे जो मेन पैनल कॉलम है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है. The most commonly used panels in Photoshop are found in the main column in the middle. तो most commonly used panel है वो हमारा क्या है? मेन पैनल कॉलम है जो कि हमें मिडल में देखने को मिलता है. By default, Photoshop opens 3 panels for us. तो जो Photoshop है वो हमारे लिए 3 पैनल बाय डिफॉल्ट ओपन करके रखता है पहले से ही. At the top of the main column is the color panel. Below the color panel is the properties panel, and at the bottom the layers panel is situated. तो जो हमारा कलर पैनल होता है वो हमें सबसे टॉप पे देखने को मिलता है. उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज पैनल देखने को मिलता है, और बॉटम में हमें क्या देखने को मिलता है? लेयर्स पैनल. Each panel has its name displayed in a tab at the top of the panel. अब आता है बच्चों पैनल ग्रुप्स. Notice that along with the color, properties and layers panel, there are other panels in the column as well. For example, the color panel at the top has a swatches tab to the right to it. The properties panel has an adjustment tab beside it.
And on the right of the layers panel at the bottom are two tabs, channels and paths. तो इन तीन पैनल्स के अलावा हमें और भी टैब्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कलर पैनल होता है टॉप पे, उसके पास एक स्वैचेस टैब होता है. प्रॉपर्टीज पैनल के पास एक एडजस्टमेंट टैब होता है. और राइट पे जो लेयर्स पैनल होता है उनके पास क्या होते हैं, दो टैब्स होते हैं, channels or paths. With so many panels to work with in Photoshop, Adobe needed a way to prevent them from cluttering up the screen. The solution is to group related panels together into panel groups. A panel group can contain two or more individual panels. This allows multiple panels to fit within the space of a single panel. Photoshop can only display one panel in a group at a time. तो जो Photoshop होता है उसमें मल्टीपल पैनल्स होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही पैनल जो होता है वो डिस्प्ले होता है. So while one panel is open, the other panels in the group remain hidden behind it. The panel that's currently open in the group is known as the active panel. तो वो पैनल जो कि एक्टिव होता है वो होता है एक्टिव पैनल. मतलब जो पैनल हमारा डिस्प्ले हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव पैनल कहते हैं. Active panel can be easily identified because the name of the active panel appears brighter than the others. अब आता है switching between panels in a group. अगर हमें एक पैनल से दूसरे पैनल में स्विच करना हो तो वो हम कैसे करेंगे. To switch between panels in a group, click on the tabs. आपको क्या करना है, टैब्स पे क्लिक करना है. For example, on the left, the color panel is open with the swatches panel hiding in the background. On the right, the swatches tab is clicked. This opens the swatches panel and sends the color panel into the background. For example, color panel है, अगर वो डिस्प्ले हो रहा है और उसके बैकग्राउंड में हमारा swatches panel है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पे जो swatches panel का टैब होगा उसे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो swatches panel है वो क्या बन जाएगा, एक्टिव पैनल हो जाएगा. फिर collapsing and expanding panel groups. A panel group can be temporarily collapsed so that only the tabs along the top of the group are displayed. This frees up more space for panels in the other groups. To collapse a panel group, double click on any tab in the group. This will collapse all panels in the group regardless of which tab is clicked on. Here we have double clicked on the swatches tab. This collapses both the swatches panel itself and the adjustment panel beside it so that only their tabs are visible. Notice that the color panel below them has grown taller to fill up the extra space. तो अगर हमें किसी भी पैनल को कोलैप्स करना हो, कोलैप्स मतलब उसे थोड़ा छोटा करना हो ताकि जो स्पेस है हमारे लिए फ्री हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस पैनल पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे. तो उस पे डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो हमारा पैनल होगा वो क्या हो जाएगा, टैब में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा. To expand a group that have been collapsed to make the panels visible, click once on any tab in the group. Here we have clicked once on the swatches panel and now the panel is once again visible. तो अगर हमें उस पैनल को दोबारा से एक्सपैंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस पे एक बार क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, वो पैनल जो होगा दोबारा हमारा विजिबल हो जाएगा. The color panel below the group has reverted back to its original smaller size. So, just to quickly summarize, double click on a tab to collapse the panel group, single click on a tab to expand it. यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों, we can save our image in the format that can be opened and used in other imaging or page layout application.
TIFF and ERS are standard printing formats that are supported by many applications on both Windows and Macintosh platforms. BMP bitmap is a popular Windows image format and PICT is a popular Macintosh image format. तो जो हमारी इमेज होती है हम उनको तो हमारी जो इमेजेस होती है हम उनको फोटोशॉप में फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं जो कि हम दूसरे पेज लेआउट एप्लीकेशंस जो होती है उनमें भी यूज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि TIFF एंड ERS जो है वो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग फॉर्मेट्स है दैट आर सपोर्टेड बाय मेनी एप्लीकेशन, जो कि मेनी एप्लीकेशंस के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं। BMP bitmap is a popular Windows image format। तो जो BMP bitmap है ये पॉपुलर विंडोज इमेज फॉर्मेट है और PICT क्या है? पॉपुलर मैसिंटोश इमेज फॉर्मेट। अब आता है क्लोजिंग अ पैनल। Along with collapsing and expanding panels in Photoshop CC, they can be closed also, which are not in use. To close a single panel in a group, first click on the Panels tab to select it. Then click on the menu icon in the top right corner of the panel and choose Close from the menu. तो ये काफी सिंपल है। आपको क्या करना है? जस्ट आपको जो पैनल है उस पर क्लिक करना है ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको मेन्यू आइकन पे क्लिक करना है और टॉप राइट कॉर्नर पे उसके बाद आपको मेन्यू आइकन पे क्लिक करना है जो कि आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेगा और उसके बाद आपको क्लोज को चूज करना है उसमें से। अब आता है बच्चों ओपनिंग पैनल्स फ्रॉम द विंडो मेन्यू। All of Photoshop's panel can be accessed from the window menu in the menu bar along the top of the screen. To reopen a panel after closing it or to open any other panel of Photoshop, click on the window menu. तो आपको किसी भी पैनल को रीओपन करने के लिए सिंपल विंडो मेन्यू पे क्या करना है? क्लिक करना है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? मेन्यू बार में मिलेगा। This opens a menu with a complete list of every panel among other images available in Photoshop CC। तो क्या होगा? उसके बाद आपकी एक कंप्लीट लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपके सारे पैनल्स के जिसमें हमारे सारे पैनल्स अवेलेबल होंगे। A check mark besides a panel's name means that the panel is currently open and active on the स्क्रीन। तो जिस पैनल नेम के पीछे एक चेक मार्क होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा? जो हमारा पैनल है वो क्या है उस टाइम पे? एक्टिव है और ओपन है। टू ओपन अ पैनल दैट इज नॉट ऑलरेडी ओपन, नो चेक मार्क बिसाइड इट, क्लिक ऑन इट्स नेम इन द लिस्ट। तो आपको किसी भी पैनल को ओपन करने के लिए उस लिस्ट में से उसके नेम पर क्या करना है? क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों। थॉमस नॉल इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु क्रिएटेड एडोब फोटोशॉप। तो थॉमस नॉल थे जिन्होंने क्या क्रिएट किया था? हमारा एडोब फोटोशॉप को। In 1989, the program he developed for image processing with the GUI was sold to Adobe System, which brought it out as a Photoshop. The Adobe Photoshop version CC 2015 was released on 2000. Repeating, the Adobe Photoshop version CC 2015 was released on June 15, 2015. Was dedicated to Thomas Knoll and his brother John Knoll। तो जो हमारा Adobe Photoshop version 2015 है वो जून 15, 2015 में रिलीज किया गया था। अब आता है बच्चों वर्किंग विद लेयर्स। In previous class we have learned a little about layers. In Photoshop, layers are the key components to work with graphic objects.
These are used to work on individual parts of an image without affecting the other parts. तो हमारा जो लेयर होती है वो किस लिए यूज होती है? लेयर जो होती है वो हमें एक इमेज के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर हमें वर्क करना हो तो उसके लिए हमारी लेयर्स यूज होती हैं. A Photoshop image consists of multiple layers, with each layer containing different object in the image. तो हमारे Photoshop में हम multiple layers create कर सकते हैं जिसमें हर layer में हमारा image का एक object होता है. When we open a digital camera, photo or a newly scanned image in Photoshop, it exists as a single layer known as background layer. We can add new layers on top of the background layer as we work. तो जब हम अपनी Photoshop में एक इमेज ओपन करते हैं तो वो एक सिंगल लेयर की तरह एग्जिस्ट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैकग्राउंड लेयर बोलते हैं. तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अपनी न्यू लेयर्स को ऐड कर सकते हैं. रिपीटिंग. तो इसके बाद हम अपनी न्यू लेयर्स को उस इमेज में ऐड कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग लेयर्स डायलॉग पैनल. The layers dialog panel appears on the right side of the Photoshop window. तो जो हमारा layers dialog panel है वो हमारे Photoshop window के right side में होता है. Layers dialog panel has options which are used to perform specific tasks. तो अब हम वो टास्क पढ़ते हैं जो कि हमारे लेयर्स परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले आता है लेयर टैब. इट इज यूज्ड टू मूव द लेयर्स डायलॉग पैनल अराउंड द फोटोशॉप वर्क एरिया. तो जो लेयर टैब होता है वो हमारे लेयर्स डायलॉग पैनल को मूव करने के लिए काम आता है. लेयर्स फिल्टर. It enables us to hide layers based on different images. There are so many types of layers like a normal layer, adjustment layers, etc. We can filter the similar types of layer with this. तो layers filter जो होता है क्या काम करता है? वो हमारी जो लेयर होती हैं उनको हाइड करने के लिए काम आता है. Layer mode menu. It has many options to change the appearance of a selected layer. तो इस लेयर मोड मेन्यू में क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं जिससे हम जो हमारा सिलेक्टेड लेयर का अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. फिर आता है ओपेसिटी. इट इज यूज्ड टू चेंज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ सिलेक्टेड लेयर. ये हमारी जो सिलेक्टेड लेयर होती है उस ट्रांसपेरेंसी को चेंज करने के लिए यूज होता है. Where 0 is the total transparency and 100 is no transparency. 0 मतलब क्या होता है कि टोटल ट्रांसपेरेंट है और 100 मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है. अब आता है fill opacity. It adjusts the amount of opacity of pixels. It adjusts the amount of opacity of the pixels only, but layer styles remain unaffected and remain 100% opaque. तो ये वाला ऑप्शन हमारा ओपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है. अब आता है लेयर्स आई आइकॉन. When we click on the layers icon, the layer image along with the eye icon disappears. Click again on the layers eye icon to make the image as well as the eye icon appear again. तो इसका क्या होता है फंक्शन कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी इमेज जिसके पास आई आइकॉन होता है वो डिसअपियर हो जाती है और अगर हम इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर से जो इमेजेस होती हैं वो अपीयर हो जाती हैं. Layers panel stack. All the working layers are displayed here. यहाँ पे क्या होता है जितनी भी layers जिस पे वर्क हो रहा है वो डिस्प्ले होती है. Link. It enables us to link layers which will move together unless unlinked. तो ये हमें layers को लिंक करने के लिए काम आता है. Layer effects. It applies effects like a shadow, outer glow, etc. to our image layer. तो जो layer effects होती हैं वो simply हमारा
शैडो और आउटर ग्लो ऐड करने के लिए यूज होता है। अब आता है एड लेयर मास्क। इट एड्स लेयर मास्क to the currently selected layer, which allows us to paint the parts of our layer without damaging our original image। तो लेयर मास्क जो होता है वो लेयर मास्क ऐड करने के लिए यूज होता है जो हमारी सिलेक्टेड लेयर होती हैं उन पर। Add adjustment layer. It allows us to do basic arguments like brightness, contrast, saturation, photo filter, color balance, etc. तो adjustment layer हमारा brightness, contrast, saturation, photo filter ये सब मैनेज करने के लिए यूज होता है। Layers group. It creates a new layer group to add the layers in it। layers group क्या होता है? ये एक new layer create करता है, एक ये न्यू लेयर ग्रुप क्रिएट करता है जिसमें हम अपनी लेयर्स जो हैं और ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू लेयर। इट क्रिएट्स अ न्यू लेयर टू ऐड इमेजेस इन इट। तो ये क्या करता है? ये एक न्यू लेयर क्रिएट करता है जिसमें हम अपनी इमेज ऐड करते हैं। डिलीट लेयर। ये सिंपल क्या करता है? डिलीट करता है जो कि सिलेक्टेड और एक्टिव लेयर हो उस टाइम पे। अब आता है बच्चों लेयर बेसिक्स। टू वर्क विद लेयर्स इन द लेयर्स पैनल, ड्रैग लेयर अप और डाउन इन द लेयर्स पैनल टू चेंज द ऑर्डर टू लेयर्ड ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। तो लेयर पैनल का ऑर्डर चेंज अगर आपको करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे? जो लेयर है उसको ड्रैग करेंगे अप और डाउन। Click the create a new layer icon at the bottom of the layers panel to make a new layer। तो एक create a new layer आइकन होता है हमारे नीचे जो कि रिपीटिंग एक हमारा क्रिएट अ न्यू लेयर बटन होता है, आइकन होता है बॉटम पे जिसपे हम क्लिक करके अपनी एक न्यू लेयर बना सकते हैं। दिस लेयर इज ट्रांसपेरेंट अंटिल समथिंग इज एडेड टू इट। तो कुछ भी ऐड करने से पहले जो न्यू लेयर होती है वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। टू नेम अ लेयर, डबल क्लिक द करंट लेयर नेम, टाइप अ न्यू नेम फॉर द लेयर, प्रेस एंटर की। नया नाम देने के लिए एक लेयर को आप क्या करेंगे? सिंपल उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसे रीनेम कर देंगे और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। To change a layer's opacity, select a layer in the layers panel and drag the opacity slider located near the top of the layers panel to make the layer more or less transparent। तो layers की opacity change करने के लिए आप क्या करेंगे? लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका लेयर्स पैनल है, उसमें सारे लेयर्स आपको शो हो रहे होंगे। फिर आप क्या करेंगे? जो ओपेसिटी स्लाइडर है जो कि आपको लोकेट होगा टॉप ऑफ द लेयर्स पैनल पे, क्या करेंगे? आप उसको ड्रैग करेंगे और उसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करेंगे। अब आता है रीसाइजिंग अ लेयर। In the layers panel, select one or more layers that contain images or objects to resize. Choose edit free transform। तो आप क्या करेंगे? जो लेयर्स पैनल है उसमें से अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे पहले जिसमें आपकी इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप एडिट पे जाएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। A transform border appears around all the content on the selected layers। तो क्या होगा? एक ट्रांसफॉर्म बॉर्डर अपीयर होने लगेगा आपका जो कंटेंट है, मतलब आपकी जो इमेज होगी उसके बॉर्डर पे। Hold the shift key to avoid distorting the content and drag the corners or edges until the desired size is obtained। उसके बाद आप क्या करेंगे? शिफ्ट को होल्ड करके आप जो आपकी इमेज है उसको अपने डिजायर्ड साइज में चेंज करेंगे। Drag inside the transform border to move the content around the image. Drag outside the transform border to rotate the content। तो उसको आपको अगर अपनी इमेज को आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब आप सिंपली जो ट्रांसफॉर्म बॉर्डर का आउटसाइड वाला पार्ट है उसे यूज करके अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं।
क्लिक द चेक मार्क इन द ऑप्शंस बार और प्रेस एंटर की टू फाइनलाइज द चेंज। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। अब आता है अनलॉक द बैकग्राउंड लेयर। बिकॉज द बैकग्राउंड लेयर इज लॉक्ड, इट कैन बी मूव्ड, it can't be moved in the document window or rearranged in the layers panel, and some editing functions won't work on it. To unlock the background layer, click the lock icon to the right of the layer name in the layers panel. तो जो भी लेयर हमारी बैकग्राउंड पे होती है वो क्या होती है, लॉक्ड होती है। इसका मतलब हम उस पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो उसे अनलॉक करने के लिए हम लॉक आइकन पे क्लिक करते हैं, जो कि हमें उसके नेम के राइट साइड पे शो हो रहा होता है। एडजस्टिंग द इमेज क्वालिटी। अगर आपको अपनी इमेज की क्वालिटी एडजस्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, मेन्यू बार पे जाएंगे और अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पे जाएंगे। उसके बाद अपनी ब्राइटनेस को ब्राइटनेस स्लाइडर के थ्रू आप एडजस्ट करेंगे और कंट्रास्ट स्लाइडर के थ्रू आप अपने इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो एडजस्टमेंट्स है वो अपीयर होने लगेगी। इमेज के कलर वाइब्रेंस को एडजस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मेन्यू बार पे जाके अपनी इमेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाके वाइब्रेंस पे जाएंगे। फिर एक्सपेरिमेंट बाय एडजस्टिंग द वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन स्लाइडर। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप आपकी इमेज का वाइब्रेंस और सैचुरेशन लेवल को एडजस्ट करेंगे। The vibrance slider affects the intensity of colors. It has strongest effect on muted colors in the image. The saturation slider increases the color intensity of all colors in the image. जो saturation slider होगा वो आपकी color की जो intensity है उसको increase करेगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ओके करना है। अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने जो इमेज है उसका ह्यू और सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सिंपल अपने मेन्यू बार पे जाके अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे जाना है और ह्यू सैचुरेशन पे जाना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो ह्यू और सैचुरेशन और लाइटनेस है आप अपनी इमेज पे सेट करेंगे। द चेंजेस विल इफेक्ट ऑल द कलर्स इन द इमेज। The hue saturation changes the colors in an image. ये क्या करता है, आपके जो कलर होता है इमेज में उनको चेंज करता है। सैचुरेशन स्लाइडर क्या करता है, आपके इंटेंसिटी ऑफ कलर्स को चेंज करता है। और जो लाइटनेस होता है वो आपके कलर की ब्राइटनेस को चेंज करता है। To affect only a specific color with these sliders, first go to the drop down menu at the top left of the hue saturation dialog box and choose a color range like yellows, then adjust the hue saturation or lightness sliders. These changes will only affect the selected color range wherever the color appears in the image. तो अगर आपको किसी इमेज का पर्टिकुलर कलर पे आपको अफेक्ट करवाना है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे और वहां पे टॉप लेफ्ट पे आपको ह्यू सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा। वहां से आप कलर रेंज जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने येलो सिलेक्ट करा है तो आपकी इमेज में जितने भी येलो कलर होंगे सिर्फ उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना है। अब आता है बच्चों रीटचिंग इमेजेस। Enhancing and retouching photos in Photoshop is an effective way to work with. There are many tips, tricks, and techniques for improving things like skin tone and imperfections and enhancing the photos subjects featured during design. तो आपको अगर अपनी इमेज को इन्हांस करना हो या फिर रीटच करना हो अपनी फोटोज को, जैसे स्किन का टेक्सचर हो गया, टोन हो गया, या फिर कोई भी इम्परफेक्शंस है उसको आपको ठीक करना हो, तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसका यूज करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है रिमूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पिक्चर से रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, लेयर्स पैनल में
जो लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका टूल बॉक्स है उसमें आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बार में जो साइज और हार्डनेस है उसको एडजस्ट करेंगे। इन द ऑप्शंस बार एडजस्ट द साइज एंड हार्डनेस ऑफ द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल टू फिट द आइटम टू रिमूव। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऑप्शंस बार है उसमें जो साइज और हार्डनेस है उसका आप चेंज करेंगे, लाइक एडजस्ट करेंगे, आपका जो ब्रश है उसका एडजस्ट करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है वो ब्रश आपका उसमें फिट हो जाए। क्लिक ऑन अ स्पॉट और ड्रैग ओवर द ऑब्जेक्ट टू रिमूव। उसके बाद आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। अगर आपको कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो उसमें आप क्या करेंगे, लेयर्स पैनल पे जाएंगे, अपनी लेयर को चूज करेंगे, फिर सिलेक्शन टूल पे जाके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर टू इंक्लूड अ लिटिल ऑफ द बैकग्राउंड ऑल द वे अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बैकग्राउंड है उसको भी आप थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। इन द मेन्यू बार, उस मेन्यू बार पे जाके आप एडिट पे जाएंगे, फिर फिल पे क्लिक करेंगे। इन द फिल डायलॉग बॉक्स चूज कंटेंट अवेयर इन द कंटेंट्स मेन्यू एंड देन क्लिक ओके। जो फिल डायलॉग बॉक्स है उसमें आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अवेयर पे चूज करेंगे और फिर सिंपल क्लिक कर ओके क्लिक कर देंगे। The selection will fill with content that matches the background, hiding the unwanted content from the view। तो क्या होगा, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है आपको रिमूव करना था वो हाइड हो जाएगा और आपके जो बैकग्राउंड है उससे मैच हो जाएगा। अब आता है बच्चों एडिंग टेक्स्ट एंड शेप्स। अगर आपको टेक्स्ट और शेप ऐड करना है इमेज में तो आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स पे जाएंगे और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस बार में जाएंगे और कोई फॉन्ट चूज करेंगे, उसका फॉन्ट साइज चूज करेंगे, कलर चूज करेंगे और जो अदर ऑप्शंस आपको दिखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आप कैनवास पे क्लिक करेंगे और सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को टाइप करेंगे। A paragraph of text can also be created by dragging out the text box and then typing inside the box। आप एक पैराग्राफ और आप एक पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होगा, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको ड्रैग करना होगा जिससे उसका जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। Click the check mark in the options bar to accept the text and exit text mode। This automatically creates a new editable type layer in the layers panel। Use the move tool to move the text into position in the image। Save the image in the Photoshop.psg format to retain the editable type layers for future editing। तो आपने जो आपका टेक्स्ट को राइट किया है उसको आप मूव टूल के थ्रू मूव कर सकते हैं अपनी इमेज में, अपने अकॉर्डिंग आप उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको उस इमेज को सेव करना होगा विद .psg फॉर्मेट, जिससे आप उसको फ्यूचर में और यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपना टेक्स्ट को एडिट करना हो तो आप क्या करेंगे, टाइप लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको लेयर्स पैनल में मिलेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप जो कि आपको टूल बॉक्स में शो होगा। उसके बाद आप अपने चेंज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो ऑप्शंस बार में सेटिंग्स है उनको चेंज करेंगे, जैसे फॉन्ट हो गया या फिर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना हो वो चेंज करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, व्हेन द एडिटिंग इज फिनिश्ड क्लिक द चेक मार्क इन द ऑप्शंस बार। जब आपकी एडिटिंग जो है वो फिनिश हो जाएगी, जो चेक मार्क होगा उसको आपको क्लिक करना है ऑप्शन बार में से। फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ शेप। अगर आपको अब एक शेप क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, उसमें क्या करेंगे आप क्लिक एंड होल्ड द रेक्टेंगल। तो टूल बॉक्स में से आप रेक्टेंगल टूल को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिजायर्ड टूल फॉर द शेप टू ड्रॉ। आप अपने अकॉर्डिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे अपनी शेप के लिए।
In the options bar, choose a fill color and other options for the shape. These can be changed later. तो options bar में से आप उसका कलर को भी सिलेक्ट करेंगे. आप इस कलर को, आप जो कलर है उसको फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं. Hold the shift key to avoid distorting the shape as dragged in the image to create an editable shape. This automatically creates a new shape layer in the layers panel. तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके अपनी जो शेप है उसको ड्रैग करेंगे और यूज द मूव टूल टू मूव द शेप इनटू पोजीशन इन द इमेज. इसके बाद अपनी मूव टूल को यूज करके आप अपने शेप को मूव करवा सकते हैं और उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं. Scale, transform or rotate the shape without harming its image quality by choosing Edit, Free Transform or pressing Ctrl T. आप अपनी शेप को स्केल, ट्रांसफॉर्म और रोटेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे या फिर सिंपल आप कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं. टू चेंज द कलर ऑफ द शेप, गो टू द लेयर्स पैनल, फाइंड द डिजायर्ड शेप layer to change and double click the thumbnail of the layer to open the color picker. अगर आपको अपनी शेप का कलर चेंज करना हो तो आप लेयर्स पैनल पे जाएंगे और अपने डिजायर्ड शेप लेयर को चूज करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद जो आपका कलर पिकर है वो ओपन हो जाएगा और वहां से आप अपना नया कलर चूज कर सकते हैं. On clicking colors in the color picker, a live preview of the selected color will appear on the shape. इसके बाद आप सिंपल ओके क्लिक करेंगे और जो आपका न्यू कलर है आपका अप्लाई हो जाएगा. अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी शेप को कस्टम कर सकते हैं. टूल बॉक्स में जाएंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे और फिर होल्ड करेंगे रेक्टेंगल टूल पे और उसके बाद आप जाएंगे कस्टम शेप टूल पे. इन द ऑप्शंस बार, क्लिक द डाउन फेसिंग एरो टू द राइट ऑफ द शेप पिकर. ऑप्शंस बार में आपको एक डाउन फेसिंग एरो दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे. टू व्यू ऑल द कस्टम शेप्स दैट केम इन फोटोशॉप, क्लिक द गियर आइकॉन ऑन द राइट ऑफ द शेप पिकर. Choose all from the menu and click OK in the message that appears. तो अगर आपको सारी कस्टम शेप्स को व्यू करना हो, आप सिंपल क्या करेंगे, गियर आइकॉन होता है जो कि आपको राइट पे मिलेगा शेप पिक करके, उस पे आप क्लिक करेंगे और आप उसमें से फिर चूज करेंगे और ओके को क्लिक करेंगे. Then click the bottom right corner of the shape picker and drag it out to see all the shapes. तो फिर आप क्या करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे शेप पिक करके और उसको ड्रैग करेंगे ताकि आप सारी शेप्स को सी कर सके, सारी शेप्स को आप देख सके. अब यहाँ पे बच्चों समरी आती है इस चैप्टर की, आप इसे रीड करना ताकि आपका जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाए अच्छे से. और मैं आपको मिलूंगी अब चैप्टर नंबर 4 में. टिल देन कीप लर्निंग.